Good morning, dear student. I am Naran Mahanti. Today I am here with another video that is complementary gene. Okay, class 12 biology. It is a sub content of principle of inheritance and variation, right? So, in this lecture, we will study about the complementary gene. In the last class, you just remind. In my last lecture, I have already taught you that what is pleiotropy and what are the best examples. Okay, pleiotropy means one gene, single gene that controls many characteristics. Are you getting my point? But complementary genes means many gene controls one characteristics, that is called complementary. मतलब है प्लियोट्रोपी मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल करने वाला है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या है ना, बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन. ओके, मेनी जीन्स में प्रेजेंट इन लोकोस ऑफ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम. लोकोस का मतलब मैं तुमको पहले समझाता, ये हम बात भी कर चुके हैं. लोकोस का मतलब है, लोकोस का मतलब है द लोकेशन और द पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर जीन इज प्रेजेंट. मान के चलो ये क्रोमोसोम है, वहां यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे लोकोस कहेंगे. क्या कहेंगे? लोकोस. लोकोस मीन्स लोकेशन ऑफ द जीन इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकोस. सो दो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन दैट में प्रेजेंट ओके इन द सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम. बात क्लियर है कि बहुत सारे जीन अगर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे तो हम उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन. मैनी जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टरिस्टिक्स और वन ट्रेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग you over here, that is sweet pea. Sweet pea, the scientific name is Lathyrus odoratus. Okay, the in Lathyrus odoratus excuse me, the color of this sweet pea, it may be pink or it may be white. There are the two possibilities, or there are the two colors of the sweet pea. One is your pink, another one is your white. Let me tell you, okay, how the pink color is achieved. The pink color of the sweet pea is achieved due to certain chemical reaction. Mind it, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पी जो स्वीट पी का पिंक कलर होता है ना, ये अपने आप नहीं होता है, उसमें एक केमिकल रिएक्शंस होता है. क्या केमिकल रिएक्शन है? देखो मैं बता रहा हूँ. पहले यहाँ पे एक रॉ मटेरियल होता है प्लांट के अंदर, ठीक है. दिस रॉ मटेरियल दैट इज कन्वर्टेड इनटू ओके क्रोमाजन विच इज व्हाइट इन कलर, जिसका कलर क्या है? व्हाइट है. देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एंथोसियानिन विच इज पिंक इन कलर. समझ में आ रहा है? विच इज पिंक इन कलर. First, the chemical reaction is followed by raw material is being converted into chromogen, which is white in color. Then this chromogen is converted to anthocyanin, which is pink in color. ये chemical reaction है. You know, each and every chemical reaction is guided by some enzymes or catalysts. So similarly, the raw material converted into chromosome, okay, in presence of enzyme. Okay, that is E1. I am telling you, E1 means enzyme 1 is responsible for conversion of raw material into chromosome. Similarly, the chromosome is converted into anthocyanin with the help of another enzyme that is called E2. Is that clear? This enzyme, if this enzyme will secrete, then the raw material will convert into chromosome. Similarly, if E2 enzyme will secrete, then chromosome convert into anthocyanin. Without the enzyme, chromosome never converted into anthocyanin, and without this enzyme, raw material cannot convert into chromosome. Are you getting my point? In which condition the enzyme is secreted? कब ये enzyme secret होने वाला है? This enzyme is controlled by a gene that is called C gene. उसको क्या कहा जाता है? C gene. C gene अगर डोमिनेंट में रहेगा तब जाके E1 सिक्रेशन होगा. E1 होने के बाद रॉ मटेरियल तुम्हारा क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा. सिमिलरली E2 is being also controlled by a dominant gene. Are you getting my point? And this dominant gene is called P. This is the P gene. This is C gene and this one is P gene.
If P gene is in a dominant state, then only the E2 will release. If E2 will release, then chromogen converted into anthocyanin and the color of the flower become pink. मतलब बात बहुत क्लियर है कि C जीन की वजह से E1 एंजाइम सिक्रेशन होता है, C जीन की वजह से E1 कन्वर्ट होता है, E1 सिक्रेशन होता है, और ये E1 रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं क्रोमाजन में. सिमिलरली दिस P जीन अगर ये डोमिनेंट में रहेगा P जीन, तो ये E2 सिक्रेशन होगा एंड E2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ क्रोमाजन इनटू एंथोसियानिन. रिपीट माय पॉइंट. मतलब फंडामेंटल बहुत क्लियर है कि बोथ C एंड P अगर ये दोनों डोमिनेंट में रहेंगे, दोनों एक साथ अगर डोमिनेंट में रहेंगे, तब जाके ये पिंक होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. मान के चलो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रॉ मटेरियल है, समझ रहे हो, और ये C डोमिनेंट में रहेगा तब जाके E1 होगा. मान के चलो C डोमिनेंट में नहीं है, रिसेसिव है, यानी ये E1 कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. अगर ये डायरेक्ट पिंक हो जाएगा तब जाके ये हम उसको पिंक नहीं मानेंगे. पिंक कलर होने के लिए, पिंक कलर का फ्लावर होने के लिए C डोमिनेंट में रहना जरूरी है, P डोमिनेंट में रहना जरूरी है. C अगर डोमिनेंट रहेगा तो E1 होगा, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल क्रोमाजन में कन्वर्ट होगा. P डोमिनेंट में रहेगा तो वही तुम्हारा क्रोमाजन एंथोसियानिन में कन्वर्ट होगा और पिंक कलर होगा. सो पिंक कलर होने के लिए कंडीशन क्या है ना, बोथ C एंड P will be in dominant. If out of these two gene, if one is recessive, then also the pink color character will not achieved. ये बात को याद रख लो. पिंक कलर होने के लिए बोथ C एंड P डोमिनेंट होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू द सिचुएशंस, राइट. सपोज दिस वन इज CCPP. मैं आप लोग को बताया था ना, कोई भी एक्सक्यूज मी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आइडेंटिफाई करना है, अगर ऐसे डाइहाइब्रिड में, तो तुम लोग को 1 और 3 पोजीशन को ऑक्यूपाई करना है. ये 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है. तुम लोग किस किस को प्रायोरिटी देना है, 1 को प्रायोरिटी दोगे, 3 को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है. तब जाके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है. तो मैंने तुम लोग को बताया था पिंक कलर होने के लिए क्या है, C एंड P बोथ डोमिनेंट में रहना चाहिए. तो यहाँ पे देखो C डोमिनेंट में, P डोमिनेंट है, ये इसका मतलब ये कलर क्या होने वाला है, पिंक होने वाला है. अगर मैं एक ऐसा सिचुएशन और एक दूं, और एक सिचुएशन में तुम लोग के सामने पेश करता हूं, जैसे कि कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाला है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये कैपिटल 1 और 3 ना, ये कैपिटल C, ये कैपिटल P. 1 और 3 में अगर बोथ C एंड P डोमिनेंट रहेंगे तब जाके पिंक होने वाला, तो ये भी कैरेक्टर पिंक होने वाला है. अगर मैं और एक सिचुएशन देने वाला हूँ, सपोज स्मॉल c कैपिटल P दिया हूँ मैं, ठीक है. हियर यू सी, मैंने क्या बताया था आप लोग को कि बोथ C एंड P शुड बी इन डोमिनेंट. अगर डोमिनेंट में रहेंगे तब जाके C E1 को रिलीज होगा और P E2 को रिलीज करेंगे, और तब जाके पिंक होगा. तो यहाँ पे तो देखो C एंड P डोमिनेंट में रहना जरूरी है. यहाँ पे तो C डोमिनेंट में नहीं है, रिसेसिव में है. P तुम्हारा मतलब बस डोमिनेंट में है. उसका मतलब है कि तुम पिंक नहीं बोलोगे. ये व्हाइट है, ये क्या है, व्हाइट है. व्हाइट का और एक पॉसिबिलिटी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ. सपोज यहाँ पे कैपिटल C दोनों डोमिनेंट है, स्मॉल p है, तो भी फिर हम उसको व्हाइट ही कहेंगे. क्यों हो व्हाइट कहेंगे बताओ, क्योंकि मैंने बताया था ना पिंक होने के लिए कंडीशन है कि बोथ C एंड P डोमिनेंट होना चाहिए. यहाँ पे तो C डोमिनेंट है, P तो डोमिनेंट नहीं है, समझ रहे हो. तो तुम्हारा सवाल है कि सर यहाँ पे C एंड P बोथ डोमिनेंट में क्यों रहना जरूरी है, क्यों हम C एंड P डोमिनेंट रहेंगे तब जाके हम उसको पिंक कहेंगे. What are the reasons, sir? What are the reason that we must call that both C and P if dominant, then the character will be pink? What is the reason behind? The reason is very simple. The reason is that ki if C will dominant, then it will release the enzyme, and that enzyme convert raw material into chromogen. P is also need to be dominant because this P will release E2. If it will dominant, then it releases E2, and this E2 is responsible for conversion of chromogen to anthocyanin. For that, the characteristics will be pink. This is the simple understanding or simple fundamental. You must realize these things. Okay. So और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ तुम लोग को, ये जो जीन्स है C एंड P, ये एक ही क्रोमोजोम में प्रेजेंट होना चाहिए. क्रोमोजोम देखो, क्रोमोजोम तो ऐसे होता है ना, ये एक क्रोमोजोम है, ये भी एक क्रोमोजोम है, ठीक है. ये क्रोमोजोम में जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये जो क्रोमोजोम में ये जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, ये जो जीन है, ठीक है, एक ही क्रोमोजोम में हो सकता है या डिफरेंट क्रोमोजोम में भी हो सकता है. मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा C है तो यहाँ पे P भी हो सकता है.
द कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स may प्रेजेंट इन लोकस ऑफ सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम में भी रह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम में भी रह सकते हैं। मान के चलो ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे मान के चलो अगर यहाँ पे सी हुआ है तो और एक क्रोमोसोम में पी रह सकता है, यहाँ पर पी हो सकता है, ठीक। ये बात हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो सेकेंड पॉइंट ना, मेनी जीन में प्रेजेंट इन लोकोस ऑफ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। Are you getting my point? This is all about the chromosome, complementary, but we will study in the next upcoming video that how the inheritance that takes place in complementary gene. Complementary gene में inheritance कैसे होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ complementary gene। ठीक।